Okay, please continue. Is it okay now? No, I think you can do a little better. I think it's still a little low, but we can hear you though. Is it okay, uncle? I think so. Let's continue, and then I think the volume. बहुत कम आ रहा है आवाज. मेरा आवाज कम आ रहा है? हाँ सर. हाँ, सूर भाई का आवाज कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है. यदि मेरा सही आ रहा है तो फिर मैं करता हूँ. हाँ, आपका अच्छा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है. चलो ठीक है. ओके, कंटिन्यू प्लीज. हाँ सर, अभी तो सही आ रहा है आपका. ओके, आ गया, सूर भाई का अच्छा आ गया. All right, very good. So we yesterday concluded on the first portion of the Malachi chapter 1. We are studying from the prophetical book of Malachi. और पिछले दिन हम लोगों ने मलाकी का पुस्तक उसका पहला अध्याय से अध्ययन कर रहे थे. And we will continue our study. We were in the first 5 verses we have concluded yesterday. Now we will try and complete the next portion of that whole chapter, chapter 1 of Malachi. और पिछले दिन हम लोग पहला अध्याय का पहला वचन से 5वां वचन तक हम लोग अध्ययन कर रहे थे. आज हम लोग जो दूसरी भाग के ओर जाएंगे और जो पूरा अध्याय है 6वां वचन से 14 वचन तक हम उसका समापन करेंगे. May God bless all of us through his word, even today, as we meditate from the book of Malachi. और परमेश्वर हम सभी लोगों को उनके वचन के जरिए आशीष करे, जैसे कि आज भी हम उनके वचन को मनन करने जा रहे हैं. Yesterday, we considered the first 5 verses, we considered God's love for Israel. God was interacting with his children, and he showed through the first 5 verses how much he loves them. और पिछले दिन हम लोगों ने जो 5 वचनों को हम लोग देख रहे थे, उन वचनों में से हम लोगों ने ये अध्ययन किया कि परमेश्वर इज़राइल को कैसा वो प्रेम कर रहा था. And I'm sure the Lord has spoken to us also to show how much he loves us, we, the new generation Israelites, or the New Testament Israelites. So, परमेश्वर ने उन वचनों के जरिए कल जो है हमको भी परमेश्वर ने बात किया है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे भी कितना प्रेम करते हैं, और हम जो है एक नई इज़राइल के तहत हमसे भी परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं. Today, when we consider from verses 6 to 14 of Malachi chapter 1, we're going to consider how God is speaking to the priests, how he's confronting the priests of Israel. और आज हम लोग जो दूसरी भाग के और अध्ययन करने जा रहे हैं, इस अध्ययन में हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं मलाकी का पुस्तक उसका पहला अध्याय 6वां वचन से 14 वचन, परमेश्वर उन याजकों का सामना कैसा कर रहे हैं, उस बात को हम लोग दूसरी भाग में पढ़ सकते हैं. And I'm sure the Holy Spirit will lead us and guide us to learn more truths even today, because we are all the New Testament priests, and we will have our lessons as we learn from the book of Malachi. और मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करेंगे कि आज जो हम नया नियम के जो याजक लोग हैं, परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करने वाला है. I joined the session today as early as 6:33 p.m. and the first song where the children, Christy and Kezia, I think, it was wonderful to see the children with what enthusiasm they were singing. They were actually waiting for the announcement to be made, their names to be called out. And I was reminded of Psalm 8 and verse 2, out of the mouths of babes and suckling, the Lord is going to bring forth his praise. What a wonderful testimony it was. To me personally, I was encouraged. So मेरे प्यारो, जब पहला मैं आज जो है 6:33 में मैं जुड़ गया था, और जुड़ने के बाद जो छोटे छोटे बच्चे थे वो उनका नाम का पुकार को वो लोग इंतजार कर रहे थे, और कितना मधुर गाना को वो लोग गा रहे थे. ये जब गाना गा रहे थे उस वक्त भजन संहिता उसका 8वां अध्याय और दूसरा वचन को मुझे याद आ रहा था, तूने अपने बेरियों के कारण बच्चों और दूध पीवों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु को पलटा लेने वालों को रोक रखे. The same thing towards the end of the program also we had some children singing. How wonderful it is to hear the children singing. That has a lot of relevance to what I'm going to share with you also today.
मेरे प्यारो, ये जो बच्चों का गाना कितना मधुर होता है, और उसके साथ साथ जो आखिरी में आज जो बच्चे लोगों ने गाना गाया, वो भी महत्वपूर्ण है। आज जब अध्ययन हम लोग करने वाले हैं, इस अध्ययन में भी हम उसकी महत्वता को आज देखने वाले हैं। All right. Now, in those days, in the olden days, when a marriage was conducted, the person who conducts the marriage, he is always paid a kind of a fee. I'm talking about the olden days, and it does not have relevance today. But this is an incident that happened in the old. तो पुराने जमाने में क्या होता था, जो व्यक्ति यदि शादी करता था तो उसको कुछ पैसा देना पड़ता था। आज के जमाने की बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था। In one such wedding, the bridegroom went and asked the conductor, "How much should I pay you? What is your fee? How much fee should I pay you?" और जब शादी करते वक्त जो है, जो दूल्हा होता था, वो आकर के कहता था कि मैं तुमको कितना पैसा पे करूं। The bridegroom said, well, bridegroom went and asked the conductor, दूल्हा, how much should I pay you? So the conductor immediately told the bridegroom, how much do you think you can pay me? और जब जो है दूल्हा जा करके पूछता था कि मैं तुमको कितना पैसा पे करूं, ऐसा वो सवाल पूछा करता था। And the conductor immediately responded and told him, how much is your bride worth? How much is your bride worth? और उस वक्त जो शादी करवाने वाला व्यक्ति ये कहता था कि तुम्हारा जो दुल्हन है, उस दुल्हन का कितना कीमत है, उतना पैसा तुम दो। So this bridegroom immediately took a 100-pound note and gave it to the conductor. और उस वक्त वो क्या करेगा ना, 100 पाउंड का जो नोट होता है, वह पैसा होता है, वो तुरंत निकाल करके उस शादी जो करवाता है उस व्यक्ति को देता है। The conductor received that. He looked at the bride and he gave back 90 pounds back to the bridegroom. और वो जो शादी करवाने वाला व्यक्ति क्या करता है, उसमें से वो 100 पाउंड पैसा जो है वो लेता है। लेने के बाद उसमें क्या करता है, वो 90 पाउंड पैसा को जो है ले करके उस दुल्हा को वो दे देता है वापस। Yeah, he looked at the bride and then he gave back to the bridegroom 90 pounds. और उसने जो है दुल्हन को देखा, दुल्हन को देखने के बाद फिर से वो वापस जो है 90 पाउंड वापस दे देता है। There is a truth in this little incident that happened that I related to you just now, brothers and sisters. सो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सच्चाई है मेरे प्यारो, उस सच्चाई को आप लोगों के सामने मैं बताना चाह रहा था। When it comes to worship, many of God's people are doing this way. और बहुत सारे ऐसे जो हमारे विश्वासी लोग हैं, वो क्या करते हैं, इस तरीके से वो काम करते हैं। Now, when we come to the worship the Lord, that is a very important aspect in the life of a believer. और जब विश्वासियों के जीवन में आराधना के विषय में हम लोग आते हैं, तो ये विश्वासियों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारो। All right. Now, अंकल जस्ट ए मिनट। yes. जो भाई लोग Six verses, from verses 6 down to verse 14, we must remember a few things. और जब हम लोग 6वां वचन से 14 वचन तक हम जब अध्ययन करेंगे, तो हमें कुछ बातों को याद रखना बहुत आवश्यक है। The walls and the temple in Jerusalem has been built up. और जो यरूशलेम की जो शहरपना है, वो ऑलरेडी बन चुका है। God's children who were in exile returned back, and then they have completed this work. The temples, the walls have all been constructed. Its work is finished. और परमेश्वर के लोग जो बंधी अवस्था में थे, वो लोग फिर से वो वापस आ चुके हैं, और अभी मंदिर और उसके साथ साथ जो शहरपना है वो भी बन चुका है।
But still, they were under the Persian control. The Persian king was controlling them. The kingdom was controlling them. फिर भी वो लोग जो पारस की राजा है, उस पारस की राजा उनको नियंत्रण कर रहा था, उनको शासन कर रहा था। And so that made them feel bad. और इसी की वजह से उन लोगों को बहुत ही बुरा महसूस होने लगा था। As I told you yesterday, when they came back to Jerusalem, when they built the walls, built the temple, their longing was the Messiah will come. He will conglomerate all the Jews around the world. They will all come there. They will all be together. Then the Messiah will start ruling as a king. That was what they were expecting to happen in Jerusalem when they came back. और जब वे लोग वापस आए, एक बहुत बड़ी आशा, बहुत बड़ी आकांक्षा उनके जीवन में भरा हुआ था। उन्होंने तो मंदिर तो बना लिया, लेकिन उनके जीवन में एक ही एक आशा था कि मसीहा आएगा और उसकी राज्य की स्थापना करेगा, और वो आशा और आकांक्षा अभी तक उनका पूरा नहीं हुआ है। But still, the Persian kingdom or the Persian king had control over them. ओके, फिर भी अभी क्या हो रहा था, जो पारस की राजा है, पारसी राजा है, अभी भी उन लोगों को जो है नीचे दबा करके बस शासन कर रहा था। So that was a disappointment for these Judeans or the children of God who came back from exile. और जब बंधुआई में जब इजराइल के लोग, यहूदा के लोग जो है आए थे, उनके लिए बहुत निराशाजनक बात थी। And because of that, hopelessness set in their lives. और इसीलिए उनके जीवन में आशाहीन व निराशा जीवन में लोग व्यतीत कर रहे थे। As a result of the hopelessness, everything they were doing Nam Ke Vaste. They were going through the motion of worship or any ministry they were doing, Nam Ke Vaste, they were doing it. और मेरे प्यारो, जो कुछ भी वो लोग परमेश्वर के लिए सेवा कर रहे थे, वो सेवा जो है नाम के वास्ते वो लोग काम कर रहे थे, दिखावटी के लिए वो लोग जो है उसकी सेवा वे लोग कर रहे थे। All right. Now, this message that we're going to read and understand from verses 6 down to 14, there are two messages, two important facts that comes out to us very clearly. सो मेरे प्यारो, जब हम इस अध्याय को अध्ययन करने वाले हैं, इस अध्याय में हम क्या देखेंगे ना, दो बातों को हम अध्ययन करने वाले हैं। पहली बात है जो संदेश है, जो 6वां वचन से 14 वचन को इस अध्याय को, एक है जीवन की सेवकाई, Life in ministry and the life in serving God. These are two things that we will understand as we read these 6 to 14 verses. और 6वां वचन से 14 वचन जब हम लोग पढ़ेंगे तो दो बातों को हम अध्ययन करने वाले हैं। पहली बात यह है कि जीवन की सेवकाई, और दूसरा परमेश्वर की सेवा में हमारी जीवन। Yeah, you must remember that the Lord is addressing the priests here among the children of God. और एक बात आपको और मुझे ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जो ये सेवकाई है उसमें इजराइल के लोगों को नहीं, बल्कि यहाँ के इजराइल के याजकों को परमेश्वर संबोधन कर रहे हैं। So I want to ask us all the question for all of us to think, what is worship? और मैं आप सभी लोगों को एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि ये आराधना क्या है? Worship is giving someone their due, the respect which they need to be given. और आराधना एक ऐसी चीज होती है जो सम्मान, जो आदर एक व्यक्ति पाने का योग्य है, उस आदर और सम्मान देना ही आराधना है। In other words, worship is recognizing the worth of the person. और आराधना का मतलब ये होता है जो व्यक्ति की उस चीज को पाने का योग्य है, उस चीज को पहचानना है। So that is why if you see in Revelations chapter 4 and 5, you will read a heavenly worship that is happening there. The 4 beasts, the 4 and 20 elders, the tens and thousands of angels, they are constantly worshiping the Lamb, the Lord. That is what they are doing. And that is an infinite worship which happens constantly. सो मेरे प्यारो, आराधना की बात जब आती है तो प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय और 5वां अध्याय में हम देख सकते हैं जो 4 प्राणी और 24 प्राचीन और जो है लाखों स्वर्गदूत, वे लोग परमेश्वर की आराधना, वो एक ही ध्यान, एक ही मन लगा करके परमेश्वर की आराधना वे करते हुए
आ रहे हैं और वही आराधना उसी बात को ही हम आराधना कहते हैं। Worship in the scripture is known as glorifying God or giving glory to God. मेरे प्यारो, आराधना परमेश्वर का वचन में ये होता है कि परमेश्वर को महिमा देना। In other words, worship or glorifying is that we submit to God all our nature. We submit to Him totally. और आराधना का मतलब दूसरी ओर देखा जाए तो हमारे हर प्रकार के गुण और स्वभाव में परमेश्वर के प्रति हम संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। This is exactly what Warren Wiersbe says. He says worship is the submission of all our nature to God. और एक कमेंटेटर है, ये जो कमेंट्री लिखते हैं, जो वारेन वेरसबी करके एक व्यक्ति है, वो ये कहते हैं कि हमारे जीवन से संपूर्ण रीति से परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाना ही आराधना है। All right. Now, worship there is a kind of a six-fold activity, which most of us know, but I'm putting everything together for our collective understanding so that we are all on the same page when it comes to worshiping or glorifying God. और मेरे प्यारो, यह आराधना क्या होता है? न 6 स्तर की जो कार्य को आराधना कहते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, फिर भी मैं आप लोगों को इन सब बातों को एक और बार आप लोगों के लिए दोहराना चाहता हूं। This is the introduction to this passage that we're considering today from verses 6 to 14, because the Lord is chiding the priests. He's calling out the priests and telling them what they are doing. In other words, he is finding fault in the way they are worshiping him or they are glorifying him. And that is why it is important for you and me, brothers, to understand what exactly is worship. सो मेरे प्यारो, ये जो वचन को हम लोग छठवा वचन से लेकर के छठवा पद से 14 पद तक हम लोग जब पढ़ते हैं, इस पदों के लिए ये हमारे लिए का पृष्ठभूमि है। तो इजराइल के जो याजक लोग परमेश्वर का आराधना तो कर रहे थे, लेकिन छल और कपट भरा आराधना कर रहे थे। तो सच्चा आराधना क्या है, उस बात को परमेश्वर शिक्षा देना चाहते हैं। So the first thing is worshiping or glorifying God is praising God for all that he is and what he has done. So मेरे प्यारो, आराधना का बात यही है कि परमेश्वर की प्रशंसा करना। कि परमेश्वर को क्यों प्रशंसा करना? क्योंकि परमेश्वर ने जो काम किया है, उन कामों के लिए हमें परमेश्वर को प्रशंसा करना है। You have it in the screen. I'm just reading out that because I put it together. So second is thanking him for his gifts and all his goodness to us. और दूसरी बात, आराधना इसीलिए हम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जो बहुत सारे वरदान दिया है, परमेश्वर ने जो अच्छाइयां की है, उन अच्छाइयों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना ही आराधना है। The third one is our worshiping or glorifying him is also asking him to meet our needs and the needs of those who are known to us. सो मेरे प्यारो, आराधना का मतलब ये भी होता है कि परमेश्वर के पास जा करके हमें हमारे लिए और हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे बहन लोग हैं, उनके जरूरतों के लिए परमेश्वर को मांगना व परमेश्वर से प्रार्थना करना। Fourth aspect of worshiping and glorifying is offering him our gifts, our services, and ourselves to him. That's a way of worship. और आराधना का मतलब ये होता है, चौथी बात वो क्या होता है, जो परमेश्वर ने आपको और मुझे जो वरदान दिया है, उन वरदानों को परमेश्वर की सेवा के लिए और अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए और क्या करना, न संपूर्ण रीति से बलिदान चढ़ा देना, ये है आराधना। Fifth, worship or glorifying also means we are learning of him from the word, from what we read, and from what we hear. सो मेरे प्यारो, आराधना का मतलब ये भी होता है, जो वचन की हम पढ़ते हैं, जिन वचनों को हम सुनते हैं, उन वचनों को हमें सीखना ही परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करना है मेरे प्यारो। And sixthly, worship or glorifying God is the act of obeying his voice
and telling others also about the worth of this God that we worship and follow. सो मेरे प्यारो, परमेश्वर की आराधना का मतलब ये भी होता है उस परमेश्वर की आवाज को सुनना, परमेश्वर की आवाज को दूसरों को बोलना और उसकी आज्ञाओं को पालन करना आराधना होता है। Brothers and sisters, this is the concise way of how I've understood what worship and glorifying is, and I've done this based on a few research. सो मेरे प्यारो, ये आराधना का मतलब मैं संक्षेप रीति से इन 6 बातों को आप लोगों के सामने रख दिया हूं। इस बात को मैं इसीलिए कहता हूं क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत सारे रिसर्च किया है, मैं उसके लिए बहुत सारे परीक्षण करके आप लोगों के सामने मैं इन बातों को रखा है। All right, so what we have understood in the previous slide and now how we are going to put it into action is also how we worship and glorify Him. What you see on the screen is how we put it into action, the application. और मेरे प्यारो, पिछली बार तो हम लोगों ने देखा कि आराधना होता क्या है। इस आराधना को हम अभी देख रहे हैं कि इसको हम लोग कर्मों में व काम में कैसे ला सकते हैं। All right. The first thing that you see is, Lord, you are wonderful. That is when we praise Him, when we worship Him, when we attribute all our praises to Him, we say, Lord, you're wonderful. That's a way of worship. और परमेश्वर को जब आराधना करते हैं उस वक्त जो है परमेश्वर की गुणों को हम प्रकाश करते हैं। कैसे? हे प्रभु, तू ही आश्चर्य परमेश्वर है, तू ही महान परमेश्वर है। उसकी महानता की प्रशंसा करना, बढ़ाई करना ही पहली बात आराधना है। Then in our prayer, we request the Lord. We say, please, Lord. We ask Him for certain things. That is another way of worship. सो मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं उस वक्त परमेश्वर को हम रिक्वेस्ट करते हैं, परमेश्वर को हम जो है हमारा विनती को लेकर के जाते हैं। प्रभु प्लीज आप ऐसा करिए। ये भी एक आराधना करने का एक दूसरी तरीका है मेरे प्यारो। And when we read the word, when we hear a sermon, when we hear a message, we say, yes, amen, yes, Lord. That is another kind of worship. मेरे प्यारो, जब परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं उस वक्त परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, मेरे जीवन में कार्य करता है और हम कहते हैं, हाँ प्रभु, मैं इस बात को सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार हूं। ये भी एक आराधना का एक दूसरी तरीका है मेरे प्यार। And then when we receive something from God, then we say with gratitude, we say, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. That is also worship. सो मेरे प्यारो, जब परमेश्वर से हम कुछ पाते हैं, परमेश्वर हमें कुछ देता है, ऐसे वक्त में भी हम क्या करते हैं? प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। ये कहना भी एक तरीका का आराधना है मेरे प्यारो। And then in our prayers, when the Lord prompts us, speaks to us and say that I want this from you, we said, yes, I give it to you. Take this, Lord. That is another way of glorifying Him and worshiping Him. मेरे प्यारो, जब प्रभु आपको और मुझे कुछ देता है, हम भी उस परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के लिए, हे प्रभु ये है, ये तेरे लिए है प्रभु करके कुछ हमें देना, वो भी एक तरीका का आराधना है मेरे प्यारो। And finally, when we testify before God's children, we tell them, listen, see, this is what the Lord has done for you and for me. Quite often we do that. That is another way of glorifying God. That's another way of worship, brothers and sisters. प्यारे भाई और बहनों, हम क्या समझते हैं कि आपको जीवन में परमेश्वर ने जो कार्य को किया है, उन कार्यों को जा करके दूसरे भाई बहनों को बताना है। देखो, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये अचंभा और अद्भुत काम को किया है। दूसरों को गवाही देना, परमेश्वर की महिमा करना, ये भी एक तरीका का आराधना है। What I put together is collectively what worship and what glorifying God is and how we can apply it and how we can do it. This is something that most of us do in our day-to-day lives, and this is nothing new. I thought it was appropriate in a forum like this. When we study this Malachi, the first chapter, I felt it appropriate, and as led by the Holy Spirit, I shared it with you. और हम सब लोग इन बातों को करते हैं, लेकिन जब हम इस मलाकी का पुस्तक उसका 6वां अध्याय से हम जब पढ़ रहे हैं, पहला अध्याय का 6वां वचन से पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस तरीके से वो आराधना होता है
आप लोगों को मैं एक और बार दोहराया याद दिला दिया। Actually, to be honest before God, I must testify. These two slides that I put in just now, which I spoke about worshiping and glorifying, as I was praying just 1 hour before the message, these thoughts came to me, and I trust the Holy Spirit brought it to me, and I put all these things together, and that is what I've shown you just now. And I trust this has been very, very useful to me, and I'm sure it is useful to all of us. सो मेरे प्यारो, जब मैं परमेश्वर का वचन को तैयारी कर रहा था, उस वक्त 1 घंटा पहले ही यह आइडिया मुझे मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला। इसीलिए ये 2 स्लाइड्स जो है मैंने अभी अभी डाला, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। इसीलिए मैं इन आराधना के विषय में आप लोगों के सामने रखा। There was once an Italian painter, and he was sitting in the church in deep meditation. He was meditating very deeply, sitting in a church. और एक इटली की एक व्यक्ति था, एक कलीसिया में, एक चर्च में बैठ करके बहुत ध्यान पूर्वक परमेश्वर के बारे में वो ध्यान मनन कर रहा था। All right. As he was meditating, there was a call to kneel down and in prayer. And this man, this Italian, was so deep in meditation, he did not hear that. He continued to sit and meditate. और ऐसा हुआ कि जो इटालियन व्यक्ति है, इटली की व्यक्ति है, वो कलीसिया में बैठा ही रहा, और कलीसिया में ये पुकारा गया कि सभी लोगों को घुटने टेक करके प्रार्थना करने के लिए। ये व्यक्ति अपना ध्यान में इतना मगन हो गए हैं कि वो प्रार्थना करने के लिए जो बात कही गई, उस बात को वो सुन ही नहीं पाए, वो इतना ही ध्यान में मगन हो गए। There were some people there who did not like him, his enemies. And so immediately they went to the head of the church and said, listen, when you called for prayer, this person, his name is Dante, this Dante did not bow. He did not fall down and worship you. You must call him and punish him. सो जो है वहां के कुछ ऐसे दुश्मन थे उस व्यक्ति का नाम दांटे था। और क्या किया है उन्होंने, जा करके उस चर्च का जो महायाजक था, वो जो संचालन करने वाला व्यक्ति था, जा करके कहा, अरे देखो, आपने उस व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए बुलाया, लेकिन वो व्यक्ति प्रार्थना नहीं किया है, अपने आप को जो है घुटने नहीं टेका है, तो उस व्यक्ति को पुकार करके बुला करके उसको दंड दो। And then the head of the church called Dante and asked him, and then this is what Dante told the head of the church. This is what he told. और उस कलीसिया का मुखिया को जब दांटे का नाम बुलाया गया, तो कलीसिया का मुखिया को आकर के उन्होंने इस बात को कही। And then Dante said, if those who are accusing me had their mind on God, had their eyes on God, and they were praying and meditating, they would not have seen that I had not knelt down and worshipped. And this is exactly what he told as a response to the head of the church. मेरे प्यारो, जो लोग मेरे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ऐसे वक्त में जो है कौन, यदि वे लोग, मेरे दुश्मन लोग मेरे खिलाफ जो आवाज बुलंद कर रहे थे, वो यदि सच्चे मन से यदि आराधना और प्रार्थना करते होंगे, तो मेरे को नहीं देखते, वो परमेश्वर को देख करके आराधना करते। इस बात को कौन, ना चर्च का मुखिया को दांटे ने कहा था। When I was reading it, the thought that came to my mind is many times when we come to the worship meeting, apart from worshiping the Lord, we look at others. We look at what the others are doing. We look at how the others are dressed. We look at what their children are doing. We look at everything else apart from worshiping the Lord. And this is exactly what the Lord was chiding the priests, and he was calling out the priests in Malachi chapter 1 from verse 6 onwards. सो मेरे प्यारो, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, जब आराधना सभाओं में जाते हैं, लोग क्या पहने हैं, लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, लोग कैसे कपड़े पहन करके आए हैं, उसका परिधान को हम लोग देखते हैं, उनकी बातें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात को हम लोग देखते रहते हैं, हम आराधना में ध्यान नहीं देते। इसीलिए ही परमेश्वर भी यहाँ पर इसकी शिकायत लेकर के आकर के उनको करेक्शन कर रहे हैं, उनको सुधार रहे हैं। So what is not worship? और अभी हम लोग देखेंगे कि आराधना नहीं क्या है,
कौन सी बात जो है आराधना नहीं है, इस बात को हम लोग चर्चा करेंगे। Worshipping without a heart, worshipping without a heart is a wasteful worship. और हमारे दिल से यदि परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं तो हमारी आराधना एक व्यर्थ आराधना है। Failure to give God what He is worthy, His workmanship, when we don't do it, that is not worship. और जो परमेश्वर की योग्य परमेश्वर है, उस योग्य परमेश्वर को देने में यदि हम नाकाम हो जाते हैं, उसकी योग्यता के अनुसार यदि बढ़ाई नहीं करते हैं, नाकामी हो जाती है, तो ये क्या है? ना हमारी आराधना एक हरा हुआ आराधना है। Brothers and sisters, we need to introspect our lives and we need to understand from what the Lord is speaking to the priests here or God's children. And He's telling them in Malachi 6-14, which is what we're going to consider now. This is what is very important. So that is the lesson for us to introspect our lives and see how are we worshiping the Lord in the way that He wants us to worship Him. सो मेरे प्यारो, जब हम देखते हैं इस बातों को, तो हमें परमेश्वर इस बात को ये बताता है कि जो परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा पाने का योग्य परमेश्वर है, उस योग्यता के अनुसार परमेश्वर को बढ़ाई, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा हमें करना चाहिए। All right. Now let's go on to studying these verses. So let's read Malachi chapter 1 and verse 6. आइए हम लोग मलाकी का पुस्तक उसका पहला अध्याय 6वां वचन को पढ़ लेते हैं। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हैं हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया। Here the Lord is. मेरी बेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। All right, thank you. Now here we see the Lord is speaking to His children, His chosen children, which is what we saw in the first 5 verses. He's speaking to them, and particularly to the priests, and relating to them about relationship. He's talking to them about relationship. और हम लोग देखते हैं कि 5वां वचन तक हम लोगों ने देखा था कि वे लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। अभी 6वां वचन से हम लोग देखते हैं कि उन याजकों को कहते हैं कि मैं जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को चुना है, तो उस चुने हुए बातों को लेकर के परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि उनका जो सहभागिता है, उनका जो संपर्क है, इस बात को याजकों को बताना चाहते हैं। He is drawing a relevance or a comparison between the relationship of humans and the relationship with God. और दोनों बातों को एक तुलनात्मक तरीके से वो लाते हैं। पहला क्या है ना, यदि परमेश्वर होने के नाते एक मनुष्य के जीवन में संपर्क को और परमेश्वर के साथ जो संपर्क है उस बात को वो ले आते हैं। He's talking about 2 things. He's giving examples. One, he's talking about the son and the father. Then the second, he's talking about the slave and the master. और यहाँ पर 2 उदाहरणों को देते हैं, एक तो पिता और पुत्र का संबंध को, नाता को, और दूसरा एक मालिक और दास की नाता को व रिश्ता को बताते हैं। If a son speaks against the father, if a son does not give the respect that needs to be given to the father, all of us have children. I think most of us have children, or we have been children to our parents. If we don't give respect to our fathers, if we don't subdue or give him what is due to him, fathers generally get very, very upset, and sometimes they get angry. सो मेरे प्यारो, हम क्या जानते हैं कि एक माता और माता पिता हो करके यदि पुत्र हमारे पास है और वो पुत्र यदि पिता को यदि उसका जो सम्मान नहीं देता है तो कैसा लगता है ना, वो पिता को गुस्सा आता है, वो क्या करते हैं ना, बेचैन हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं होता है। Similarly, when a servant or a slave does not listen to the master,
how will the master feel with that servant? Because he's working for him, he's bought him, he has to serve him. When he does not do it, how will the master feel? And this is exactly how the Lord feels. That is why he's using this comparison, so they realize the reality and the gravity of the situation, that they are not giving him the due respect that needs to be given to him. सो मेरे प्यारो, एक दास और एक मालिक का संपर्क को देखने के बाद यदि मालिक की बात को यदि दास ना सुने तो उसको कैसा महसूस होगा? उसको अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही यदि पिता परमेश्वर, यदि वो पिता परमेश्वर है तो हमें उसकी आदर और सम्मान देना चाहिए। हम यदि पिता परमेश्वर यदि हमारा मालिक है, हम यदि दास हैं, तो उसी तरीके से हमें भी सम्मान और आदर देना चाहिए। A human tendency, a human standard is the son must honor and respect the father. Similarly, the servant must honor and respect the master. But in the case of God's children, in the case of the Judeans, there was nothing of honor, there was nothing of respect. सो मेरे प्यारो, यदि मनुष्य के तौर पर हम लोग देखें तो एक पिता जो है क्या करता, एक पुत्र जो है पिता को सम्मान देता है, एक दास एक मालिक का आदर और सम्मान देता है। लेकिन इस्राएल को यदि देखा जाए और उस परमेश्वर को देखा जाए तो यदि मैं उनका पिता हूं तो मेरा सम्मान कहाँ है, मैं उनका मालिक हूं तो मेरा सम्मान कहाँ है, ये बात उनके जीवन में नहीं थी मेरे प्यार। You see in that verse, he says, if I am your father and master, where are the honor and respect I deserve? और वहां पर हम लोग देखते हैं कि यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहाँ है, यदि मैं मालिक हूं व स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है। Who is this God that they are serving? The Lord of Lords, the King of Kings, the Lord of hosts. He's the Lord of heaven's armies. Now, he is asking this question, where is my honor? Where is my respect? To worldly fathers and worldly masters, you give so much of respect, but to me, you are treating me with contempt and disdain, disrespect. सो मेरे प्यारो, हम कौन से ऐसा परमेश्वर है जिसकी हम सेवा टहल करते हैं? वो परमेश्वर राजाओं के राजा, वो परमेश्वर प्रभुओं के प्रभु, वो महिमा से भरा हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि वो परमेश्वर यदि ऐसा परमेश्वर है तो उसकी सम्मान कहाँ है, उसकी आदर कहाँ है, उसकी महिमा कहाँ है? वो वही सवाल ही हमसे पूछता है। Brothers and sisters, after doing all these things, I mean, the Lord is questioning them. Look at the way they're answering the Lord. They're saying, but you ask, how have we ever shown contempt for your name? The last portion of verse 6. और छठवा वचन के आखिरी भाग में हम लोग देखते हैं कि उनका जवाब क्या है? वो ये कहते हैं याजक, परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? Now, as I speak to you, I'm reminded the children, the small children, when they do something wrong, when we go and check them and correct them, they said, no, what did we do? We did nothing. We did not do anything like that. Isn't it? Children do that normally. और छोटे बच्चे यदि कुछ गलती करते हैं तो हम जाकर के सुधारते वक्त वो छोटे बच्चे क्या कहते हैं पता है ना, कि नहीं, मैं तो कुछ गलती किया ही नहीं, मैंने किया ही नहीं, ऐसे ही काम करते हैं कि नहीं, आपको तो मालूम होना चाहिए। And then the Lord goes on to explain. You see what a patient and loving God we have. He's long suffering, he's patient, he's gracious, he's merciful. You see how he's responding to them in verse 7. और 7वां वचन में आप देखिए मेरे प्यारो, वो परमेश्वर कितना दयालु है, कितना कृपालु है, कितना वो महान परमेश्वर है, कितना वो सहनशील परमेश्वर है। वो 7वां वचन में वो कैसे उन लोगों को जवाब देते हैं। Read verse 7. Let's read verse 7. आइए 7वां वचन को पढ़ते हैं। तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं, इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। You see, there is a defective way of worship which these people are following, and that is what the Lord is pointing out in this verse 7. और यहाँ पर देखो कि वे लोगों की आराधना जो है
एक गलत तरीका, गलत माध्यम का आराधना वे लोग कर रहे हैं, और उसी बात को परमेश्वर इस बात को पॉइंट आउट करते हैं। That's what I've shown you there. There are 4 defective ways of worship which is coming out from this verse. और इस शब्दों में, इन वचनों के जरिए हम ये पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि 4 ऐसे गलत तरीका का आराधना वे लोग कर रहे थे। First of all, it's a costless worship. और उनकी जो आराधना थी, कोई उनमें मूल्य कीमत रहित आराधना था, उनमें कोई मूल्य ही नहीं थी। The second, importance was given to man rather than to God in that worship. और उनकी आराधना में मनुष्य को ज्यादा महत्व दिया जाता था, न कि परमेश्वर को। And then the third that you see there, it is the holiness of God that was violated there. और यहाँ पर हम लोग इस बात को भी देख सकते हैं, परमेश्वर की जो पवित्रता थी, उस पवित्रता का वे लोग उल्लंघन किया था। And all these things, fourth one, made this sacrifice worthless. Whatever ministry they're doing was worthless. और जो कुछ भी सेवा वे लोग कर रहे थे, उसका कोई मूल्य नहीं थी। You see, this is what the Lord was pointing out in verse 7. Let's understand this little more in detail as I explain to you now. और अभी हम लोग जो है जिस बात को हम अध्ययन किए थे, इस अध्ययन में और थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। Keep in mind that these 4 things are the defective ways of worship that the Lord was pointing out to the priests among the Judeans or the children of God. और आइए इन 4 बातों को जो है परमेश्वर इन यहूदी लोगों के जीवन से, ये यहूदा गोत्र के लोगों के जीवन से वो पॉइंट आउट करते हैं। The Lord was criticizing them about the animal sacrifices that they were making, which was so defective. और वे लोग जो पशु की बलि वे लोग चढ़ा रहे थे, वो उन पशुओं का बलि वो चढ़ा रहे थे, वो सब कैसे है, व्यर्थ था, वो टूटे फूटे थे। They became lazy in making these sacrifices. और वे लोग जो बैल की बलि चढ़ाना था, उसमें वे लोग बहुत ही आलसी हो गए हैं। Because they became lazy, they became dull-headed. और वो लोग आलसी हो गए, इसीलिए कुछ काम करने के लिए उनकी इच्छा ही नहीं होती थी। And because of that, they did not know what they were doing. और इसीलिए उनको ये भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। That is why they asked the Lord, why are you finding fault? What have we done? What are we doing? और इसीलिए वे लोग कहते हैं, अरे हमारे जीवन में कौन सी गलती है, हम लोग कौन सा गलती कर दिया, हमसे ही गलती निकालते रहते हो करके वो लोग आरोप लगा रहे हैं। And then let's read verse 8. आइए हम लोग 8वां वचन को भी पढ़ लेते हैं। The Lord is continuing to educate them. He's continuing to teach them and continuing to tell them, listen, this is what you're doing to me. And he's explaining how he is offended and why he is saying all these things to them in verse 8. और 8वां वचन में वो फिर से सिखाने जा रहे हैं, वो सिखाना को छोड़े नहीं है, और वो किस तरीके से वे लोग परमेश्वर की विरुद्ध काम कर रहे थे, उन गलतियों को प्रभु जो है सुधार रहे हैं। 8वां वचन को पढ़िए। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं, और जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा, वह तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। All right. You see in this verse, he mentions about governor. There is a word mentioned about governor there. और यहाँ पर देखिए 8वां वचन में, तो यहाँ पर एक बातें को लिखा गया है, हाकिम। Yeah. Governor is a Persian terminology. It's a Persian term. So this means that these Judeans, after they came back, after the temple was built, after the walls were built, they were still under Persian control. और यहाँ पर हाकिम की बात जो लिखी गई है, गवर्नर, वो जो शब्द है वो पारसी लोगों का इस्तेमाल करने वाली एक शब्द है। जब वे लोग
बंधुआई से छूट करके आए थे, उस वक्त भी ये जो हाकिम है, गवर्नर है पारसी का, उनको शासन कर रहा था। This only points out to the fact the governor was still there in that place, the Persian governor was there, and then they were paying some kind of tithe, or they were paying some kind of offering or something they had to give as for their existence, they were giving it to the governor. That is what this implies. और यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं, वो लोग कुछ ऐसे कि कर व टैक्स देने जैसा या फिर कोई बलि देने जैसा कुछ ऐसे वे लोग चढ़ा थे, पर उसको कुछ दिया करते थे ताकि वे लोग उस देश में रह सके। And the Lord is saying, the kind of sacrifices you offer me, the animals you offer me, which are so substandard and not as per the standard I have set you, will you do the same thing to your governor? Will you go and offer these kind of things to your governor? सो मेरे प्यारो, जैसे कि तुम जो पशुओं को ला करके मेरे सामने वो बलि चढ़ा रहे हो, ऐसे पशुओं को जा करके उन हाकिमों के पास ले जा करके देखिए, क्या आप अपना हाकिमों के पास भी जा करके ऐसे ही पशुओं का जो है तुम दान दोगे क्या? As I speak to you, I'm reminded that many times the things that we do for God, they are so substandard, they are inferior, they are not the best that we can give to the Lord. It's not the best of dress that we wear when we go to worship the Lord. It is not the best of our effort. It's not the best that we can give. This is what is coming out as the Lord speaks to his children through Malachi. सो मेरे प्यारो, जब हम भी परमेश्वर के पास जब आराधना करने के लिए जाते हैं, जो ऐसे वस्त्र को पहन नहीं पाते, ऐसे दान को हम लोग दे नहीं पाते, ऐसे काम को हम कर नहीं पाते, ऐसे ही इन लोगों को भी परमेश्वर मलाकी के जरिए जो है बात कर रहे हैं। I'm reminded that when I was small, I told you we are four brothers, and when with my parents we went on a holiday to Bombay. And I remember this is way back, must have been in the 70s or 80s. We were small children, we were in the school. There was one uncle called Jnanamuthu. I think this uncle was in Fort or he was in Thane. He was a Tamil uncle, but he worked amongst the Tamilians there in bringing the gospel. We went and stayed with him, and something he told me I want to tell you, which I remember now as I speak to you. और एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। 1980 के दशक में हमारे परिवार जो है थाने में जाया करते थे। एक तमिल अंकल थे। मैंने आप लोगों को पहले से ही बताया हूं कि हम 4 भाई थे, तो उन अंकल के पास हम लोग जाते थे। वो अंकल जो तमिल समाज के लोग जो थे, उन लोगों के बीच में वो प्रभु का वचन को सेवा कर रहे थे। I think the elderlies और in एक घटना Bombay, हुई थी, उस घटना को मैं आप लोगों को रखना चाहता हूं। Yeah, the elderly brothers and sisters who are there in Bombay will know Brother Jnanamuthu. He was working for the Lord there. When we went and met him one day, that Sunday, we all got ready, and I remember distinctly. I was wearing a T-shirt, and I just wore a T-shirt to get to the worship meeting. And when we made the prayer before going to the assembly, Uncle said, and he admonished us, and I said, "We are going to the Lord. You're going to meet the Lord. We're going to worship the Lord. He's the King of Kings, the Lord of Lords, the highest, the supremost person in this whole universe. We must be cautious of how we dress and go." I'm telling you, brothers and sisters, since then, this word has been ringing in my ears, and every time I come to the presence of the Lord, I make sure that I'm properly dressed with the best of my dress, because I'm coming to meet the Lord there. सो मेरे प्यारो, जब ज्ञानमुतु के बारे में जो है बॉम्बे के लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, उनके पास हम लोग रह करके फिर बाद में आराधना करने के लिए जब हम लोग जा रहे थे, ऐसे वक्त में मैं एक टी शर्ट को पहन करके आराधना करने के लिए जा रहा था। उस वक्त अंकल ने मुझे एक बात को बताई कि जब हम लोग जो है आज कहां पर जा रहे हैं, हम आराधना करने के लिए जा रहे हैं। किसकी? ना जो दुनिया के सर्वशक्तिमान और सर्वोत्तम परमेश्वर के पास हम आराधना करने के लिए जा रहे हैं। तो क्या आप ऐसे वस्त्र पहन करके परमेश्वर के सामने जाएंगे? वो बात आज भी मेरे कान में गूंजता है जब मैं परमेश्वर के पास आराधना करने जाता हूं। When we go to meet a very important person, how will we dress and go?
More important that that person is this God whom we go to worship or for any meeting. So we have to be very cautious. I'm not saying this is compulsory. This is every individual's own way of looking at it. But we must remember the Lord of Lords, the King of Kings, the God of Gods is our God. So he has to be given the due respect that needs to be given. सो मेरे प्यारो, आप और मैं जब आराधना करने के लिए जाते हैं, किसी व्यक्ति को मिलने के लिए जाते हैं, तो हम अच्छे से अच्छे वस्त्र पहन करके जाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं, वो आराधना स्तुति प्रशंसा पाने का योग्य परमेश्वर है, तो हम भी जितना हो सके उतना सम्मान और हमको जितना हो सके उतना सजावट के साथ अच्छे वस्त्र पहन करके उस परमेश्वर को आराधना करने के लिए जाना चाहिए। Brothers and sisters, the priests here, when Malachi was writing, were very lackadaisical. They were very lax. They were relaxed in the way that they were showing or offering things to the Lord. सो मेरे प्यारो, इसीलिए मलाकी जो है वहां पर इस बात को लिखते हैं, जब परमेश्वर को जो बलि चढ़ा रहे थे, उस वक्त उनका ध्यान बिल्कुल भी परमेश्वर की ओर था ही नहीं। बहुत आराम तरीके से काम को वे लोग कर रहे थे। This is despite the fact that very clearly it is given in the scripture what God wants. और वे लोग परमेश्वर का वचन को दिया हुआ है, इन वचनों को देने के बावजूद भी परमेश्वर को क्या चाहिए इसको जानने के बावजूद भी God had very clearly given how they have to sacrifice, what they have to sacrifice. और परमेश्वर उनको जो है इस बात को साफ तरीके से बता दिया था कि उनको किस तरीके से बलि करना चाहिए और परमेश्वर को कौन सी चीजों की बलि की आवश्यकता है। All right, we have that in Leviticus 22. I think it's worthwhile to read those verses. Leviticus 22 from 17 to 22. Let's read those verses quickly. और लेवीय व्यवस्था उसका 22वां अध्याय हमें पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है। लेवीय व्यवस्था उसका 22वां अध्याय 22 from verses 17 to 22. और 17 वचन से 22वां वचन तक पढ़ लेते हैं। 17 से 22। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और इस्राएल के घराने व इस्राएलियों में रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो मन्नत व स्वेच्छा बलि करने के लिए यहोवा को कोई होम बलि चढ़ाए, तो अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों व भेड़ों व बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाया जाए। जिसमें कोई भी दोष हो उसे ना चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य न ठहरेगा। और जो कोई बैलों व भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए व स्वच्छावली के लिए यहोवा को मेलबलि चढ़ाए, तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष ना हो। जो अंधा व अंग का टूटा व लूला हो व उसमें रसौली व खोरा व खुजली हो, ऐसों को यहोवा के लिए न चढ़ाना। उनको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य न चढ़ाना। You see, in verse 22, the Lord is so specific when He gave these particulars of offering. You see, in verse 22, He says, "What?" W-A-R-T. Wart is a very small thing that comes on the skin. You see how very sensitive the Lord is, and He mentions this despite knowing this. The offerings which these people were offering, His children were offering to Him, were so substandard. So मेरे प्यारो 22वां वचन में 22वां जो पद है उसमें हम लोग देखते हैं एक तरह का जो है खुजली होती है ना, एक छोटी सी दाग सा होती है। ऐसा दाग वाला जो पशु है उसको भी परमेश्वर के सामने ला करके बलि नहीं चढ़ाना, इस बात को हम लोग देख सकते हैं। You see, God had outlined and told them, this is how you got to make the sacrifices. और परमेश्वर ने एक उन लोगों के लिए जो एक आउटलाइन बना दिया था कि किस तरीके से उनको आराधना करना चाहिए, बलि चढ़ाना चाहिए।
Why did God have to specify so much of details in these sacrifices? और परमेश्वर को क्यों इतना बारीकी से बातों को बताना आवश्यक थी कि जब बलि चढ़ाने की बात आती है तो Why was God giving so much of importance to the sacrifices and asking them why they did not do it? Why is God doing that? और परमेश्वर क्यों इतनी बारीकी से जो इन बातों को वो ध्यान देते हैं और इतना महत्वपूर्ण जो महत्वता इन आराधना का विषय में बलि चढ़ाने का विषय में उन लोगों को शिक्षा देते हैं। Brothers and sisters, there are two specific reasons why these sacrifices should be maintained and given the way God had detailed it. There are two reasons. मेरे प्यारो, परमेश्वर जो है इस आराधना को इसीलिए महत्व देते हैं इन दो कारणों के वजह से, और परमेश्वर को किस से आराधना परमेश्वर को क्यों कैसे बलि चढ़ाना चाहिए। First of all, the sacrificial animal that was being given is a foreshadowing of Christ. It was talking about the Messiah. It was talking about what is going to come. And so it is very, very important. And that is why God was insisting this from his chosen people. और जो पशुओं की बलि चढ़ाने बात आती है, वो पशुओं की बलि जो है आने वाला प्रभु यीशु मसीह व मसीहा का एक परिछाया को दर्शाता। इसीलिए परमेश्वर इन पशुओं का बलि के लिए बहुत ही महत्वता देता था। All right, brothers and sisters, you know, there was no blemish in Jesus when he came to die for us. In him was no sin. He knew no sin. He did no sin. सो मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान में प्रभु यीशु मसीह जब अपने आप को बलि करने के लिए संसार में आए, वो निष्पाप थे, वो निष्कलंक थे, उनमें कोई पाप ही नहीं था, उनमें कोई दोष नहीं था, ना उसने कभी पाप किया था। He was a sacrifice that was offered without a blemish. That is why the Lord was so sensitive and asking these children, his chosen children, why are you offering these kind of blemish sacrifice? You see the importance of why it has to be that specific way? तो मेरे प्यारो, आप देखिए प्रभु यीशु मसीह जो है बलि देने के लिए, वह बलि होने के लिए आए, वो निष्पाप और निष्कलंक निर्दोष मेमने के समान वो बलि हो गए। और आप देखिए कि क्यों परमेश्वर जो है इस बात के लिए महत्वता देता है जब बलि का बात आती है तो। Do you remember the two thieves that were hanging on both the sides of Jesus, the Lord Jesus? क्या आपको इस बात को याद है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्रूसान्वित हुए थे, ऐसे वक्त में उस परिस्थिति में दो जो चोर थे प्रभु यीशु मसीह के दाईं और बाएं में वो लोग टांगे हुए थे। One thief was mocking Jesus, was making fun of Jesus. और एक जो चोर था प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा था। He was insulting Jesus, even though he was also suffering on the cross. और यद्यपि वो उस क्रूस पर कष्ट भी सह रहा था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह का अपमान कर रहा था। But on the other side, the other thief was rebuking this guy and saying that, why are you doing this? Don't you fear God? We all deserve this punishment, but he is innocent. He did not do anything, isn't it? सो मेरे प्यारो, उस जो चोर था, दूसरा चोर था, जो व्यक्ति की प्रभु यीशु मसीह को अपमान कर रहा था, उसको डांट करके फटकार करके वो कह रहा था कि हमने जो है, हम सब ने गलती की सजा हम लोग भुगत रहे हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये निष्पाप है, बिना गलती की सजा ये भुगत रहा। And this is precisely why the Lord had laid down and God had laid down and said, this is how you have to make these sacrifices, blemishless sacrifices, because it was pointing directly to Jesus Christ's sacrifice many years later. सो मेरे प्यारो, इसीलिए परमेश्वर को एक निष्कलंक और निर्दोष बलि की आवश्यकता थी, क्योंकि आने वाला समय में जो मसीह का जो बलिदान है, उस बलिदान को जो है परिछाया के रूप में दर्शा रहा था। इसीलिए निष्कलंक और निर्दोष वाला बलि परमेश्वर चाह रहा था। And the second thing,
It was a true reflection of the condition of their heart, the condition of the worshippers. सो मेरे प्यारो, दूसरी बात ये थी कि उनके हृदय की परिस्थिति को दर्शाता है। वो किस हृदय से, किस मनसा से, किस सच्चे हृदय से वे लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। All right, I'm stopping here. It's past 8 o'clock. Let me stop here. God willing, we will continue this next week. I thought we'll be able to finish this first chapter today, but it's taking time. My apologies, but I think this is important for all of us to realize what was Malachi trying to tell, what was God telling his people through Malachi, and what is God telling us through his word. And so I'm spending a little more time. Thank you for your understanding. God bless you all. Thank you for this time. And thank you once again, Sibir, for a beautiful translation. और मैं यही समझ रहा था कि आज हम लोग इस अध्ययन को हम लोग खत्म कर पाएंगे, लेकिन आज हम खत्म नहीं कर पाए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। समय हो चुका है, आने वाला सप्ताह में इस बात को हम लोग पढ़ करके समझने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो जिन बातों को हम लोगों ने देखा, मुझे ऐसा लगा कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बहुत धन्यवाद ये जो अवसर मुझे मिला। Yes, dear uncle, we also heartfully thank you so much for your precious time and thank you for your wonderful teaching. Yes, we should worship the Lord with a truthful heart. Thank you so much for your wonderful teaching, uncle. Thank you. It has touched me, and definitely those who have heard, they also are touched by this message. Thank मैं you. समझता हूँ कि आप सभी लोगों को परमेश्वर ने बात किया होगा। हाँ, हमें कैसे परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, इस बात को हम लोगों ने आज अध्ययन किया था। थैंक यू सो मच फॉर अंकल, आपका जो बहुमूल्य समय और कीमती समय के लिए। बाकी का समय को मैं भाई राजकुमार के हाथ में समर्पण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत हृदय से धन्यवाद। परमेश्वर